Coulomb's law. Coulomb's law is a quantitative statement about the force between 2-point charges. When the linear size of a charged bodies are much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charged bodies are treated as point charges. तो क्या बोल रहे हैं कि दो बॉडी है, ठीक है, A और B. These are the two bodies. ठीक है, इसका जो सेपरेशन है, द सेपरेशन इज D. Okay, and size of A is very less than the separation. Similarly, size of B is also very less than the separation D. Clear है? तो जब ऐसा कंडीशन है, ठीक है, जब ऐसा कंडीशन है तो फिर क्या होगा कि वी कैन कंसिडर दीज एज पॉइंट चार्जेस. क्या कंसिडर कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? एक छोटा सा डॉट पॉइंट. हाँ समझ में? तो इस कंडीशन में वी कैन कंसिडर देम एज पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा? द कूलम मेजर्ड, ठीक है, तो कूलम जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मेजर किया द फोर्स बिटवीन द 2-point चार्जेस and found that it varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये हो गया A, ये हो गया B, और दोनों के बीच में फोर्स जो लगा है ना, ऐसा लगा, और इस फोर्स का वैल्यू था K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R हो गया दोनों के बीच का सेपरेशन, Q1 हो गया इस पे चार्ज A पे, Q2 हो गया B पे चार्ज. हाँ, समथिंग है ना, ग्रेविटेशन वाला ही फॉर्मूला है ना, सिमिलर फॉर्मूला है. क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सो दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ. क्या इसको बोलते हैं हम लोग? कूलम्स लॉ. ठीक है, अब हम टाइम देंगे, लिख लीजिएगा. Coulomb measured the force between 2-point charges and found that it varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges. ठीक है, along the line, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक है, इन दोनों को आप क्या कीजिए? ज्वाइन कर दीजिए. तो ये जो लाइन है, इस लाइन के along ही लगेगा फोर्स. क्लियर है क्या? ठीक है. Thus, if 2-point charges Q1 and Q2 are separated by distance r in vacuum, the magnitude of the force F between them is given by F is equal to K into Q1 Q2 divided by r square. How did Coulomb arrive at this law from his experiments? ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लीजिए. How did Coulomb arrive at this law from his experiments? Coulomb used a torsion balance for measuring the force between the two charged metallic spheres. ठीक है, तो कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कुछ ऐसा था. ये हैंग किया हुआ था, ठीक है, और ये रोटेट करता था. ठीक है, कोई भी चार्ज जिसके पास लाइएगा तो क्या होगा? इधर फोर्स लगेगा और ये रोटेट करेगा. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या है? टॉर्शन बैलेंस.
ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. When the separation between the two spheres is much larger than the radius of each sphere, the charged spheres may be regarded as point charges, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े थे. However, the charges in the spheres were unknown to begin with. How then could he discover relationship like equation 1.1? Coulomb thought of the following simple way. Suppose the charge in the metallic sphere is q. If the sphere is put in contact with an identical uncharged sphere, the charge will spread over the two spheres. By symmetry, the charge on each sphere will be q by 2. ओके, सपोज है ना, तो दो मेटलिक स्फीयर जो कि क्यू क्यू है ना, दो स्फीयर है, ठीक है. एक पे है चार्ज q और एक पे चार्ज है 0. दोनों को हम क्या किए, दोनों को हम कांटेक्ट में लाए. क्या लाए? कांटेक्ट में लाए. तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इस पे हो गया चार्ज q बाई 2 और इस पे हो गया चार्ज q बाई 2. क्लियर है क्या? ठीक है. By symmetry, the charge on each sphere will be q by 2. Repeating this process, we can get charges q by 2, q by 4, etc. ठीक है. अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये एक और स्फीयर है, इसको इसके टच में लाएंगे. तो अब इन दोनों पे फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्या हो जाएगा इस पे, और इस पे भी हो जाएगा q by 4. ठीक है. Okay. Coulomb varied the distance for a fixed pair of charges and measured the force for different separations. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, he varied the distance for a fixed pair of charges. तो जब जो चार्ज जो है फिक्स्ड पेयर, ठीक है, ये लेटेस्ट से d1 है, और उसके बाद फिर क्या किया हम लोगों ने, इस पे इसका डिस्टेंस जो है बढ़ा दिया. क्या हो गया, ये d2 हो गया. क्लियर है क्या? और चार्ज जो है फिक्स्ड है, ये q1 है, ये q2 है, और ये भी q1 है और ये भी q2 ही है. चार्ज से हम लोग को छेड़छाड़ नहीं कर. तो हम लोगों ने, तो क्या फिर उन्होंने क्या पाया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर. ऐसा समझ में? जैसे कि अगर शुरुआत में जो था d1 था 1 मीटर, तो फोर्स कुछ f था. अगर बाद में जो d2 था वो हम लोगों ने 2 मीटर कर दिया या 2d कर दिया, तो फोर्स जो है वो हो जाएगा f बाय 4. क्यों? क्योंकि ये तो था f बाय 1 और ये था f बाय 1 स्क्वायर, f बाय 1, और ये था f बाय 2 स्क्वायर, तो इसीलिए क्या हो गया, f बाय 4. तो जब हम लोग डिस्टेंस वेरी करेंगे तब फिर हम लोग को समझ में क्या आ जाएगा कि जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन स्क्वायर. क्लियर है क्या? Comparing forces for different pairs of charges at different distances, Coulomb arrived at the relationship equation 1.1. Coulomb's law, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at in the manner described above. While the original experiments established it at macroscopic level, it has also been established down to subatomic level. ठीक है. तो मैक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि जो है बड़ा डिस्टेंसेस के लिए और बड़े पार्टिकल्स के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, और माइक्रो का मतलब कि छोटे पार्टिकल्स के लिए भी हम लोग देख सकते हैं. क्लियर है क्या? Coulomb discovered this law without knowing the explicit magnitude of the charge. In fact, it is the other way around. Coulomb's law cannot be employed to furnish a definition for a unit of charge. In the relation, k is so far arbitrary, we can choose any positive value of k. The choice of k determines the size of the unit of charge.
In SI units, the value of K is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जो हम लोग ये निकाले थे फोर्स, ये वाला फोर्स कूलम्स लॉ में, तो इसमें जो है ना Q1 और Q2 क्या है, Q1 एंड Q2 दीज आर चार्जेस, R हो गया सेपरेशन, और K जो है ये कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है क्या? ओह नॉट केजी स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। केजी स्क्वायर हम ग्रेविटेशन का लगा दिया, पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये जो चार्जेस है ये कूलम में होगा, सेपरेशन जो है मीटर में। The unit of charge that results from this choice is called a coulomb, which we defined earlier in the section 1.4. Putting this value of K, we see that for Q1 equals Q2 is equal to 1 coulomb, R equals 1 meter. The force becomes 9 into 10 to the power 9 Newton. That is, 1 coulomb of charge is the charge that when placed at a distance of 1 meter from another charge of the same magnitude in vacuum, it experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 into 10 to the power 9 मीटर न्यूटन। ठीक है, तो जब हम लोग जो है ना, तो क्या बोल रहा है ये भैया जी बोल रहे हैं, आया, ये है 1 कूलम चार्ज और ये है 1 कूलम चार्ज। क्लियर है क्या? इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 1 मीटर। क्लियर है क्या? तो दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है क्या? So which is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 मीटर का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो गया। तो ये क्या हो गया? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो गया फोर्स। क्लियर है क्या? दिस इज द फोर्स, और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, किसके किसके बीच में? 1 कूलम और ये 1 कूलम और ये 1 कूलम के बीच में ये फोर्स लग रहा है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो 1 कूलम चार्ज हम लोग कैसे बोलेंगे? व्हाट इज 1 कूलम चार्ज? तो 1 कूलम चार्ज ऐसा है कि, है ना, ऐसा चार्ज, द चार्ज व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton is known as 1 coulomb। क्लियर है? अब देखिए, 1 coulomb is effectively too big a unit। 1 coulomb जो है अच्छा खासा बड़ा यूनिट है। कैसे अच्छा खासा बड़ा यूनिट? क्योंकि देखिए ये फोर्स जो दिख रहा है हम लोग को, बहुत बड़ा फोर्स है, बहुत ही बड़ा फोर्स है। ये फोर्स अगर देखिए ध्यान से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर दें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जो कि जी है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 8 के जी, यानी कि 9 लाख टन। बहुत बड़ा है ना? हाँ, बहुत बड़ा है।
ठीक है, उतना लाइक अगर एक बड़ा सा ट्रेन है उसका वेट उतना होगा, दिस इज वेरी ह्यूज फोर्स। तो 1 कूलम इसीलिए, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 1 कूलम इज वेरी बिग क्वांटिटी। समझ में आया? ठीक है। In practice, in electrostatics, one uses a smaller units like 1 millicoulomb or 1 mu coulomb. So therefore, जो है क्या यूज करने का है, 1 mu coulomb और 1 millicoulomb। क्लियर है क्या? म्यू हो गया 10 to the power minus 6, मिली हो गया 10 to the power minus 3। The constant k is usually put as k equals 1 by 4 pi epsilon naught for later convenience, so that the Coulomb's law is written as, ठीक है। तो इस ये जो k था, इस k को हम लोग लिखते हैं, k जो 9 इंटू 10 to the power 9 था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि जो है ना, या फिर एयर हो या फिर वैक्यूम हो, उस मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, होता क्या है कि ये जो चार्ज है Q, ये अपने तरफ है ना, अपने से क्या करता है, फील्ड जनरेट करता है ना, यस और नो? ये फील्ड जनरेट करता है, तो ये फील्ड एयर में या फिर वैक्यूम में अलग होगा, और अगर लेट अस से वाटर है या ग्लास है, कुछ मीडियम है, तो उसमें ये फील्ड अलग होगा ना, है समझ में? तो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही अगर दूसरा मीडियम होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, फोर्स क्या था, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था। ठीक है ना, ये किस में था? ये था वैक्यूम में। ठीक है, लेकिन मीडियम में हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये किस में हो जाएगा? मीडियम। और ये एप्सिलॉन आर को हम लोग फिर से बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए इसको। ठीक है, द कांस्टेंट k is usually put as k equals 1 by 4 pi epsilon naught for later convenience, so that the Coulomb's law is written as this. Epsilon naught is called the permittivity of free space. The value of epsilon naught in SI units is this. Since force is a vector, it is better to write Coulomb's law in the vector notation. क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर होता है, तो इसीलिए हम लोग वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना, जब हम लोग इसका बात कर रहे हैं ये फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला तो केवल हमको मैग्नीट्यूड दे रहा है ना, लेकिन फोर्स तो भैया वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, यस और नो? तो इसीलिए जो है डायरेक्शन वाइज हम लोग अभी लिखेंगे। It is better to write Coulomb's law in the vector notation. Let the position vectors of charges Q1 and Q2 be R1 and R2 respectively. We denote force on Q1 due to Q2 by F12. F12 जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखिए ध्यान से, force on Q1 due to 2 is known as F12. Force on 2 due to 1 is known as F21. क्लियर है क्या? चलिए इसको इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, तो ये डायग्राम को ड्रॉ कीजिए।
ये है Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज। क्लियर है क्या? जब अब क्या कीजिए, Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तब देखिए जब ये दोनों पॉजिटिव होगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। जब दोनों निगेटिव है फिर से ग्रेटर देन 0 हो गया क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। अब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो ये लेस देन 0 हो गया, और एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो ये फिर से लेस देन 0। ध्यान से देखिए, ये है लाइक चार्जेस और ये क्या हो गया, अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज में क्या होगा, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, अनलाइक चार्ज में Q1 इंटू Q2 विल बी लेस देन 0। क्लियर है? तो जब ग्रेटर देन 0 होगा या फिर जब लाइक होगा